बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम दुल्हा प्राणेश्वर राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी की ओर से दादा दादी नाना नानी विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इन प्यारे सुंदर साथ जी के दिल के मीठे भावों को सुनते हैं, अपने हृदय में उतार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रमाबेन मधानी जी की ओर। प्रणाम जी रमाबेन जी, आप शुरू कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की दृष्टि उघाड़ी जो पोतानी निरकदणी श्रीदा प्रेमाला करी पोते आप संभाळी बांधी गोली प्रेम का निरखधणी श्रीदा आटला दिवस में नायोल खवाला मरा की दुरे दामनो का महाचंडलया श्रीधा निरख दीक दीक पड़ो मारा जीवय भागी दीक दीक पड़ो चतुरा दीक दीक पड़ो मार गुण सगलानी जने न जाने मोल सगा निरखधणी श्रीदाम दीक दीक पड़ो ते चबलने दीक दीक पड़ो तर दीक दीक पते ज्ञानने जिने नोलाद्यो प्रोस निरखधणी श्रीदाम दीक दीक पड़ो मारी पाचे इंद्री दीक दीक पड़ो मारो देह श्रीधाम धणी मुखी करीने संसार सुखी दोषने निरखधणी श्रीधाम दीक दीक पड़ो मारा यांगने जने नो व्यधणी ने काम मेयोलकी नव बावरिया में वरधणी सुंदर श्रीदाम निरखद श्रीदाम तमे तमारा पूर्ण नव मुखियाने कीधी घणी दृष्ट तमे तमारा पूर्ण नव मुखिया में कीधी घणी दृष्ट निरखधणी श्रीदाम निरखधणी श्रीदाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त संत साथ की जय प्रणाम प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी सुंदर
सेवा भावी परिवार सुंदर साथ जी, जिनकी छत पे सारी रामतें हुई थी, मैंने भी उस छत के दर्शन किए हैं। बहुत सुंदर वाणी गायन हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा ऐसे ही आते रहें और वाणी गायन से हम सब सुंदर साथ को सुख प्रदान करते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी, भावदीप भाई, कौशिका जी, सबकी सेवाओं को कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं रमीला बेन टाडा जी की तरफ। प्रणाम जी रमीला बेन, प्रणाम जी। મારા સાથજી એસે આપણો જોગ 3 લીલા સોથી ઘર તણી સારઈનો એમાં ભોગ। શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે કે હે મારા સુંદર સતજી, હવે આપ જાગ્રત થઈને જુઓ, આ જાગણીનું બ્રહ્માંડ અમારા યોગ્ય છે, અર્થાત આત્મા જાગૃત કરવાનો શું અવસર છે। 3 લીલા વ્રજ રાસ તેમજ જાગણી તથા સોથી પરમધામ લીલા, આ સારઈનું સુખ આ જાગણી બ્રહ્માંડમાં પ્રાપ્ત થાય છે। કહ્યા ન જાય સુખ જાગણીના, સત ઠોરના સ્નેહ, એ ભૂમમાં જેનું કહેવાય કાંઈક પ્રકાશ તે। આ જાગણી બ્રહ્માંડના સુખોને વર્ણન થઈ શકતું નથી, કેમ કે શ્રી પરમધામનો સ્નેહ અહીં આવ્યો છે। આ સંસારમાં જે કહી શકાય છે તે હું કિંચિત માત્ર પ્રગટ કરીને કહું છું। હવે જગું ઝુકતે કરી ભાજુ ભરમના બાર, રંગે રાસ રમાડી તમારા સુફળ કરું અવતાર। હે સુંદર સાથજી, હવે હું આપને યુક્તિથી જાગ્રત કરું છું, તેમજ ભમ અજ્ઞાનના દારને દૂર કરી દઉં છું। તમને સૌને આનંદ સાથે જાગણી રાસ રમાડી તમારો માનવ અવતાર સફળ બનાવી દઈશ। હવે દુઃખના દઉં ફૂલ પાંખડી, શીતળ દષ્ટે જોઉં, સુખ સાગરમાં ઝીલાવી વિકાર સઘળા ધોઉં। હવે હું ફૂલની પાંખડીથી ચોટ લાગવા જેટલું પણ દુઃખ આપને આપીશ નહીં, તેમજ નમ્રતા પૂર્વ શીતલ દ્રષ્ટિથી આપ સૌને જોઈશ। પરમધામના અખંડ સુખનો સાગરમાં પ્રવેશ તેમજ સ્નાન કરાવીને તમારા અંતસ્કરણના બધા વિકારોને દૂર કરી દઈશ। આગે કડકડીને કહું રે સખીઓ, તો એ ના ગયો વિકાર, કઠણ સહી તમે ખંડણી વચન ખાંડા ધાર। હે સુંદર સાથજી, મેં પ્રથમથી જ પ્રકાશ ગ્રંથમાં જાતિ કાતવાનું વગેરે પ્રકરણો દ્વારા રોય રોય સત વેદના પૂર્ણ વસનો કયા, તો પણ આપના અંદરના વિકાર દૂર થયા નહીં। ત્યારે તમોએ મારી કઠિન ખંડણી તલવારની ધાર જેવા ત્રિષણ વસનોને સ્નેહ કર્યા। તે વસન ઘણું ચાલે મુને કઠણ તમને જે કયા, મારી વાસનાઓને નિંદ્રા માહે મૂળ ઘર વિસરી ગયા। તે વસન હવે મને બહુ જ ખુશી રહ્યા છે, અર્થાત વ્યથિત કરી રહ્યા છે। જે ખંડણીના કઠણ વસનોને મેં તમને ત્યારે કહ્યા હતા, તો મારી બ્રહ્મ વાસનાઓ આ ઘોર અજ્ઞાનતા રૂપી નિંદ્રામાં મૂળ ઘર ભૂલી ગઈ છે। હવે વિનતાએ ગાળું તમને કરું તે રસનો કંચ, કંચનો રંગ એવો ચડાવું, બેહું પેરે કરું ધન ધન। હે સુંદર સાથજી, ખંડણી તેમજ કસોટી વગર તમારા હૃદયને વિમ્રતાથી પીગળવાવી દઉં અને ધામધણીના પ્રેમમાં ઉન્મત્ત કરી અસલી સોનાનો રંગ આપી દઉં। જે 16.5 વાર ગાળવાથી કંચન બને છે, તથા કસોટી રૂપી કચ્છમાં ઘસીને એવો પાક રંગ ચડાવી આપું, જેથી તમો ખેલ સંસાર તથા પરમધામ બંનેમાં ધન્ય ધન્ય થાવો। જાણું સાથજી વદેશ આવ્યા દુઃખ દીધા કે ભાત, તે માટે સુખ આણી ભોમે દેવાવી મુને ખાત। હું જાણું છું કે અમારો સુંદર સાથ મૂળ વતન પરમધામથી વિદેશમાં અહીં આ માયાવી સંસારમાં આવ્યો છે, તેમજ તેઓએ અનેક પ્રકારના દુઃખ જોયા છે। આથી આ ભૂમિમાં સુંદર સાથને સુખ આપવાની મારી પ્રબળ ઈચ્છા છે। प्रणाम सखी। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर और गुजराती में बोला हुआ एक एक शब्द समझ में आया।
खंडनी के बिना और कसौटियों के बिना यहाँ पे चलेगा नहीं। वही जैसे सोने को 16.5 बार तपाकर कंचन बनाया जाता है, उसी प्रकार कसौटियां हमें तपा तपा कर कंचन बनाती हैं और उसके बाद पॉलिश भी करती हैं हमें अच्छे से। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति कोटि सुंदर। कोटि प्रणाम। आप दोनों के चरणों में, दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं 5 जी। મિનિટ થઈ ગઈ ને બરાબર अब 5 हम મિનિટ થઈ चलते ગઈ हैं हंसा रमाबेन मधानी जी। रमाबेन તો આવી मधानी ગયો। जी, प्रणाम जी। रमाबेन, प्रणाम जी रमाबेन। हैंड रेस कीजिए, दिखेगा। ओ रमाबेन मधानी जी तो हो चुके हैं, सॉरी सॉरी। हाँ जी, रमीला बेन भी हो गए। हंसा बेन कुंभानी जी, हंसा बेन कुंभानी जी, प्रणाम जी हंसा बेन। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तीन सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधो में, तामे संयो के में पहचान। हिंदू धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टि। कतेब परपरा में भी 3 सृष्टि का वर्णन आम खास खासल खास। इसी प्रकार संतों की वाणी में भी 3 सृष्टि का वर्णन है। बगुला, हंस और परमहंस। इस रहस्य का वास्तविक बोध कतेब ब्रह्म सृष्टियों को ही होता है। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम। आम खास खासल खास, कहीं बीज निज धाम। इन तीनों सृष्टि के अलग अलग धाम है। जीव सृष्टि का घर वैकुंठ होता है, ईश्वरी सृष्टि का घर बेहद मंडल होता है, ब्रह्म सृष्टि का घर मूल घर स्व लीला अदृश्य परम धाम होता है। सृष्ट ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम। ल्या है कुंजी इच्छा रूह अल्लाह, दिए सो हाथ इमाम। ब्रह्म सृष्टि हमेशा परम धाम के अंग संग रहती है। मोहम्मद अलैहि वसल्लम इनके लिए है। कुरान के रूप में अल्लाह तआला का दिया हुआ पैगाम लेकर आए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी वेद कतेब के रहस्यों का उजागर करने के लिए तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर आए, और उन्होंने आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब उजमा श्री प्राणनाथ जी के हाथों में सौंपी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर 3 सृष्टियों के बारे में बताया। अति अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी हंसा बेन। वाव, हिंदी सुंदर साथ जी आपने हिंदी बोल देखा। हाँ जी, हाँ जी। हिंदी बोलવાનું ઓછું હોય એટલે ભૂલ હોય તો માફ કરો। प्रणाम जी। हिंदी बोलवाने में कई भूल न थी, कोई भूल नहीं हुई है। और वैसे आप गुजराती भी बोलते तो हम सब सुंदर साथ जी को जरूर जरूर समझ में आ जाती। तो फील फ्री, गुजराती, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी कुछ भी बोलिए सुंदर साथ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके सारे प्रणाम जी। भाव बहुत सुंदर रूप से हमारे हृदय में गए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, जो इतने एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ हमारे पास आ रहे हैं। और अब हम आगे चल रहे हैं हमारी प्यारी कैलाश बेन कुंभानी सुंदर साथ जी की ओर। प्रणाम जी 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 कैलाश बेन। प्रणाम प्रणाम। સંભાળો સાથ અવસર આવ્યો,
આવ્યો છે હાથજી, આપ નાખ્યા જેમાં પહેલે ફેરે, વળી નાખજો એમની દાતજી. શ્રી ઇન્દ્રાવતીજીનો આત્મા સ્વરૂપ સ્વામીજી કહે છે, હે સુંદર સાથજી, યાદ કરો કે ત્રીજા બ્રહ્માંડમાં આવવાનો શું અવસર આપણને મળ્યો છે. આપણને જે રીતે પહેલે ફેરે વરસથી રાસમાં જતી વખતે પોતાના આત્માને ધામધણી શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સમર્પિત કરેલ, એ જ પ્રકારે આ જાગણીના બ્રહ્માંડમાંથી નિશ્ચિત રૂપે પરમધામ તરફ જવા પોતાના આત્માને સમર્પિત કરું. પ્રણામજી. अरे वाह, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत सुंदर। स्वयं को अर्पित, स्वयं का समर्पण करना है उनके चरणों में। अति 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 सुंदर 2 शब्दों में मर्म बता दिया आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं ललिता बेन जी की तरफ। प्रणाम जी ललिता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। कीर्तन 48, प्रकरण 48। खीन एक लेऊ लटक बन जाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। हे जीव, तुझे जो इस मानव तन में एक क्षण का समय मिला है, उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल कर लो। तुम्हारा यह मानव शरीर जन्म से नश्वर होता है, वह किसी भी क्षण देखते देखते काल के गाल में समा सकता है। भावार्थ, मनुष्य की उम्र सामान्यतः 100 वर्ष की होती है, किंतु इसका क्षण का कहलाना यह दर्शाता है कि किसी भी समय में क्षण मात्र में मनुष्य या किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। हे जीव निमख के नाटक में तू रह्यो क्यों बिलमाए, देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। हे जीव, एक क्षण भंगुर शरीर के जीवन और क्रियाकलापी रूपी नाटक में तू क्यों मस्त हो रहा है। देखते देखते ही तुम्हारे शरीर की उम्र बीती जा रही है। तुम प्रियतम पर ब्रह्म के चरणों को क्यों भूल रहे हो। भावार्थ, शरीर को अखंड समझकर पर ब्रह्म के चरणों से दूर रहना मानव की सबसे बड़ी भूल है। बचपन, किशोर और युवावस्था से मनुष्य जर्जर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु के गाल में समा जाता है, फिर भी नश्वरता के प्रति वह सावचेत नहीं होता। आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे केते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए। अपने को इस पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने वाले भी इस दुनिया से चले गए। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र को भी काल छोड़ना नहीं छोड़े, इंद्र को भी काल छोड़ता नहीं है। बाबा, ऐसी मान्यता है कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग भी नश्वर ही है। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्ट कहलाए, चारों तरफों 14 लोको, काल पहुंचो आए। हे जीव, सृष्टिकर्ता की शोभा को धारण करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को भी काल छोड़ता नहीं है। पाताल से लेकर वैकुंठ तक
14 लोकों में चारों ओर काल का ही साम्राज्य फैला हुआ है। भावार्थ, आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम ऋषियों में ब्रह्मा जी का नाम आता है। अद्यपि पौराणिक मान्यता में उन्हें सृष्टिकर्ता कहते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि वे सांकलिक सृष्टि को विस्तृत करने वाले हैं। उन्हें 4 मुख वाला नहीं कहा जाता है कि उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। वस्तुत उनके 4 मुख कभी भी नहीं थे। पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से संसार की नश्वरता को दर्शाना ही श्री जी को अभीष्ट है, अन्यथा यह पौराणिक कथन उनका नहीं है। पवन पानी आकाश जिमी, जो अगिन जोत बुझाए, अवसर्य सो जान के, तू प्राणपति लवलाए। हे जीव, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी सभी महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। तुझे यह सुनहरा अवसर मिला है, इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए अपने प्राण प्रियतम से प्रेम कर लो। देखन को ये खेल खीन को, लिए जात लट पाए। महामत हृदय रमेता सो, उपजत जाकी इच्छाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे जीव, वैसे तो यह संसार देखने में क्षण भंगुर है, फिर भी सभी लोग इसी में लिपटे चले जा रहे हैं। जिस परमात्मा की इच्छा से यह खेल बना है, उन्हें अपने दिल में बसा लो, अपने दिल में बसा लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर श्री राजन स्वामी जी के टीका के द्वारा चौपाइयों के अर्थ भी, भावार्थ भी अति सुंदर सुंदर साथ जी। ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए इस काल से, विष्णु जी की भी नहीं बच पाए, त्रिदेव त्रिगुण भी नहीं बच पाए। देखिए तो हम कैसे बच पाएंगे? केवल और केवल तारतम वाणी के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता, जीवन की नश्वरता के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन हमारी अपनी ही वाणी में आपके मुख से सुन के बहुत अच्छा लगा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में इतने सुंदर भाव लाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और सबसे सुंदर बात, अपने समय में सीमाबद्ध होकर इन्होंने इतने प्यारे प्यारे सबने भाव रखे, उसके लिए विशेष तौर पर चरणों में प्रणाम जी।